بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج چھٹی مبارک بادی ہے جس کے اوپر ہم غور و فکر کرنے کو ہیں، اور میرے عزیز بہن بھائیوں، جب ہم مبارک بادیوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آج جو چھٹی مبارک بادی ہے جس کو ہم ڈیل کریں گے، اور اس مبارک بادی میں ہم نے 2 اہم نکات دیکھے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے۔ مبارک بادی کیا ہے؟ کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے۔ مبارک، زور سے بولے میرے ساتھ، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اب کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون دیکھیں گے جی؟ کون دیکھیں گے؟ آج 2 نکات ہیں، 2 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے، اور میں آپ کے سامنے کلام مقدس کی اہم سچائیاں رکھوں گا اور آپ کی شناسائی کرواؤں گا کہ کیوں یہ درپیش بات آئی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہلے خطاب میں چھٹی مبارک بادی میں یہ مبارک الفاظ اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اب فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ پاک دل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اب جو فرسٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم آج ڈیل کریں گے، پہلی بات پاک ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر ہم خود پاک دل ہوں گے تو خدا کو دیکھیں گے۔ اگر ہم خود پاک دل ہوں گے تو کیا کریں گے جی؟ 5واں باب اس کی 8ویں آیت کا جب باخور مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس آیت کریمہ کے مطابق پاک دل لوگوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر آج یہاں پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کام کریں گے، کیونکہ اگر یہ آپ کو یقین دلایا گیا ہے اور آپ کا مکمل بھروسہ ہو گیا ہے، آپ کا توکل ہو گیا ہے کہ اب خدا کا خادم پاسٹر ساجد حنیف یہ بات کہہ رہا ہے اور یہ خدا کا خادم ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو آپ کو یہ انعام دیا جائے گا، اگر انسان ہوتے ہوئے آپ میری بات پر اتنا یقین کر رہے ہیں تو اس بات پر آپ یقین کریں کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، جس کے باندھے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے کھولے کو کوئی باندھ نہیں سکتا، وہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں فرماتا ہے کہ پاک دل لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ وہ کیا کریں گے جی؟ اگر آج میں آپ سے کہہ دوں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یہاں پر آ رہا ہے، اگر میرا آپ سرمن بڑے دھیان گیان سے سن لیں گے تو میں نیچے بیٹھک میں جا کے آپ کی ملاقات کرواؤں گا، تو یقین جانے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ محلے کے کونسلوں سے مل کر ہم بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو امریکہ جو سپر پاور ہے، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے، اگر ہم اس سے ملیں اور اگر وہ چل کر ہمارے گھر میں آ جائے تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، ہم اس کو دیکھنے کے بڑے متلاشی ہوں گے۔ اب یہاں پر جس پرسنالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ خدا باپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا باپ ہے۔ اور جو پاک دل ہوں گے، یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے الفاظ ادا کر رہے ہیں اپنے پہلے خطاب میں کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے اور کوئی بھائی نہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ پاک دل نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، اس
کی آنکھ پاک ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ جیسی پاکیزگی جیسی ہولینس میری زندگی کے اندر ہے میرے اندر ہے جو میرے ماننے والے ہیں جو میرا پرچار کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی ویسی ہی پاکیزگی ہونی چاہیے کیونکہ جو میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں ضرور ہے کہ وہ پاک دل ہو ضرور ہے کہ وہ اب میں نے یہ بات کی کہ یہ پاک دل ہونے سے مراد کیا ہے آئیں اس کو ہم دیکھتے ہیں آپ ریٹرن کر سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دا بائبل بائبل کی تھیولوجی کے مطابق بائبل کی ٹرمنالوجی کے مطابق پاک دل انسان وہ ہوتا ہے جس کی نیت خالص اور ارادے نیک ہو پاک دل انسان اپنی ڈیفینیشن نہیں کر لگی بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے مطابق اس آیت کا یہ مطلب ہے ارے ہم آپ کی بات کو مانیں یا خدا پاک روح کی بات کو مانیں آپ کا کوئی مطابق نہیں ہے آپ تو اپنے مطابق بھی نہیں چل رہے ہیں ہم نے خدا کے کلام کے مطابق بات کو کرنا ہے ہم نے خدا کے کلام کی باتوں کو ماننا ہے ہم نے کلام کی سچائیوں پر چلتے رہنا ہے اور ہم نے وہ رستہ اپنانا ہے جس کو اپنا کر انسان مر کر بھی کبھی نہیں مرتا ہے تو ہم نے کلام کی سچائیوں کو دیکھنا ہے ہم نے اپنے اندازے بائبل کی آیات پر نہیں لگانے ہیں ہم نے بائبل کی جب انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو اپنی پانی رکھیے گا سوچ سے لامحدود خدا کو نہیں جان سکتے مجھے انفیکشن ہوا ہے خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کے مانی ہے جس کے مومن ہے وہ خدا لامحدود ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ آئے زور کر تالیاں خدا کے جلال کی بائبل مقدس کی اصطلاحات کے مطابق پاک دل انسان وہ ہوتا ہے جس کی نیت خالص اور ارادے نیک ہوں جس کے خیالات صاف اور ضمیر پاک ہو پاک دل کا مطلب ہے جس میں کوئی ملاوٹ بھی نہ ہو رتی بھر کا بھی کھوٹ نہ ہو دیانتدار دل جو بھلائی کو مقصد زندگی بنائے رکھتا ہو ضرور ہے کہ دل کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک رکھا جائے دل کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک رکھا جائے یعنی چیزوں سے جو دل سے نکلتی ہیں اور آدمی کو ناپاک کرتی ہیں جو کہاں سے نکلتی ہے جی انسان کو وہ چیزیں ناپاک نہیں کرتی ہیں جو باہر سے اندر جاتی ہیں انسان کی باڈی کا ستیہ ناس اور اس کا پنجابی میں کہتے کھانا خراب وہ چیزیں کرتی ہیں جو خدا کی قربت سے ان کو روک دیتی ہیں جو اندر سے باہر آتی ہیں اور اندر سے باہر کیا آتا ہے مکر فریب جھوٹ لالچ بدگوئی فورنیکیشن لفظ یہ ساری چیزوں میں جب ہم چھپ جاتے ہیں یا ہم اس کو اپنا اس شہوت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں اور ہم اس کو ہی خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں تو در حقیقت کیا کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو گمراہی کی طرف اور شیطانیت کی طرف لے جاتی ہیں اور آپ انسان سے حیوانیت کی طرف گامزن شروع ہو جاتے ہیں اب لفظ پاک کے لیے گریک ورڈ کا استعمال ہوا ہے یہاں پر لفظ پاک کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب اس کا جو لفظ کا جو میننگز ہے کاتھاروس گریک ورڈ پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کاتھاروس اور جس کے لغوی معنی ہے صاف ستھرا پاک دل سے مراد یونانی کے لیے جو پاک کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاتھاروس اور جس کے لغوی معنی ہے صاف ستھرا پاک دل صحیح اور سچی مسیحیت دل میں اور دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے صحیح اور سچی جو مسیحیت ہے کہاں پہ ہوتی ہے دل میں اور دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے اب دل کو شرارت اور برے خیالات سے پاک رکھنا چاہیے ہمیں اس کا باغور مطالعہ کرتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 4ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اگر آپ اس کو حوالے کو ریٹرن کر لیجئے گھر میں جا کے ضرور اس کی اسٹڈی کیجئے گا میں یہاں پہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں
यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 4 बाब उसकी 4वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है कि ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर ताकि तू रिहाई पाए, बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे। अब क्या है कि अपने दिल को आपने बुरे ख्यालात से पाक रखना है। आपने अपने दिल में बदी को पैदा होने नहीं देना है। आपने अपने ख्यालात को पकीज़ा रखना है। आपकी सोचों में, आपकी गुफ्तगू में, आपके दिल में, आपकी धड़कन में यस्सु 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 नाम होगा, और जब यस्सु नूर आपकी जिंदगी में होगा तो हर बला आपकी जिंदगी में से दूर होगी। हालेलुया। अब जब हम ज़बूर 24 उसकी 3री और 4थी आयत का मुतालिया करते हैं, आप नोट कर लीजिए इस बात को भी। ज़बूर 24 उसकी 3री और 4थी आयत का जब हम बागौर मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। अब खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ है। अब हम एक जरूर है कि खुदा की तरफ ना सिर्फ अपना हाथ बढ़ाए बल्कि हम अपने दिल को भी खुदा की तरफ बढ़ाए। और जब दिल से दिल टकराते हैं, जब दिल से दिल मिलते हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। क्या होती है? क्या पैदा होती है? क्या पैदा होती है? और खुदा मोहब्बत, और खुदा मोहब्बत खुदा नहीं, ये भी बात सीख लिया। मोहब्बत खुदा नहीं है बल्कि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि खालिक मखलूक से बड़ा होता है, मखलूक खालिक से बड़ी नहीं होती है। खुदा ने मोहब्बत को पैदा किया है, बनाया है। मोहब्बत ने खुदा को नहीं बनाया, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अब जब हमारा दिल पाक होगा, हमारे दिल में लालच नहीं होगी, मक्कर नहीं होगा, फरेब नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, और हम ज़नाकारी हरामकारियों की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा दिल पाक होगा। दिल का ताल्लुक डायरेक्टली दिमाग से होता है, जज्बात से होता है, ख्यालात से होता है। जब हमारी सोचों में खुदा होगा, हमारी गुफ्तगू में खुदा होगा, हमारे ख्वाबों में खुदा होगा, हमारे सोचने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में जब खुदा होगा तो हमारा दिल भी पाक होगा। हमारा दिल भी, क्योंकि आपने ये भी आयत पढ़ी होगी कि दिल दगाबाज और हिलाबाज है, और जो दो दिल लोग होते हैं वो खुदा को पसंद नहीं है। दो दिला जो शख्स है वो खुदा को पसंद नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपसे करना चाहूंगा। स्वामी सुंदर सिंह साहब को कितने लोग जानते हैं? जब ये कहा करूंगा मुकम्मल हाथ खड़ा कर दिया करें। ये बात सीखे आप, अच्छा लगता है। जब बाहर से कोई शख्स आएगा तो आपसे इस साथ बात करेगा ना, तो वो कहेगा आपके पादरी ने आपको कुछ अच्छा सिखाया। अगर फर्ज किया आप अपने घर में चले जाए, कितने वालिदैन हैं यहाँ पे? जो बाप है, माँ है, कितने हैं? हाथ पूरा खड़ा करो, कोई टूटा नहीं हुआ अपना। शुक्र है खुदावन का, खुदा ने हमें माँ बाप बनाया है, शुक्र है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी उन लोगों से पूछे जिनके पास औलाद ही नहीं होती। तो जब आपको औलाद साहिब औलाद बनाए तो फख्र करें इस चीज के ऊपर, डरना क्यों है? अब क्या है कि अगर आपके घर में कोई शख्स आ गया है और आपके बच्चे उसको सलाम नहीं कर रहे हैं, तो वो शख्स बच्चों को बुरा कहेगा या माँ बाप को बुरा कहेगा? क्यों बुरा कहेगा? मिलकर, हाँ जी आंटी, क्यों बुरा कहेगा? किन्ने नहीं सिखाया? ठीक हो गया, तो फिर गलती कितना दी हुई? ठीक है, और मैं सिखा रहा, सीखो। ठीक है संजू, सीखो। अब ये है कि जब यहां पर जो पासवान जो होता है वो कौन होता है? जो पासवान होता है वो कौन होता है?
वो रूहानी बाप होता है, वो पेशवा है हमारा। कौन है? और आप उसके रूहानी बच्चे हैं। आप क्या है? बाइबल के मुताबिक क्या है? मैं आपकी आप में से एज में बहुत छोटा हो सकता हूँ भी, लेकिन खुदा ने जो रुतबा दिया है वो बड़ा दिया है। उस रुतबे को देखकर मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, और खुदा ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। किसी ने मुझे यहाँ पर खड़ा नहीं किया और ना कोई खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये खुदा का शर्फ है, खुदा का ममसू हूँ, खुदावन का क्या हूँ, अनॉइंट शुदा मैं एक बाशिंदा हूँ, और खुदा ने मुझे शर्फ बख्शा है कि मैं अपनी कलीसिया के सामने जो खुदा ने मुझे दी है, भेड़ों के सामने मैं कलाम सुना सकूँ। और ये मेरा हक है कि मैं आपको सही तालीम दूं बाइबल मुकद्दस की। अब जब कोई बाहर से शख्स आता है, जब वो आपसे बातें करता है, आप उससे जवाब नहीं देते, तो वो क्या कहेगा? किसने नहीं सिखाया? तो बुरा कौन हुआ? जोर से बोले, बुरा कौन हुआ? जब बोलने कोई बात नहीं, अगर माँ बाप बुरे हो सकते हैं तो जो रूहानी बाप है वो भी बुरा होगा। हालांकि माँ बाप कहते हैं बच्चे सलाम करो, बच्चे सलाम करो, बच्चे ही नामाकूल निकल आते हैं, वो सलाम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन ने गलती की होती है, सुराग छोड़ा होता है, संडे स्कूल ही नहीं भेजा होता, ताकि संडे स्कूल टीचर्स जो हैं उनको तालीम दे के बच्चे टाइम विश करना है, टाइम विश करना है भाई, टाइम विश करना है। तो जब ये बातें छोटी छोटी बच्चों को सिखाई जाएंगी तो माँ बाप के जो जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारियों को कम करें, अपने बोझ को हल्का करें, और चर्च के ऊपर भी थोड़ा सा लाद दें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ नरम और मुलायम है। खुदा यीशु मसीह आपके जुओं पर इंटरेस्ट करता है, आपके रुपए पैसे पे इंटरेस्ट नहीं रखता है। बात को समझना है कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप हाथों को खड़ा करें तो पूरा हाथ खड़ा कर दो ऊपर से। अब स्वामी सुंदर सिंह साहब को कितने लोग जानते हैं? उनकी किताबों के वसीला से, नो प्रॉब्लम। अब स्वामी सुंदर सिंह इतनी भक्ति किया करते थे, इतने खुदा में पेवस्त थे, इतने मजबूत थे, इतना उन्होंने अपनी रियासत के साथ, खुदा के साथ अपना एक रिश्ता, एक रूहानी रिश्ता कायम दायम रखा हुआ था कि लोग उससे बड़े जेलसी थे। बहुत सारी स्पिरिट ऑफ जेलसी लोगों के अंदर काम कर रही थी कि वो स्वामी सुंदर सिंह साहब को वो गुमराह करे, किसी न किसी तरह से उस मुकाम से नीचे ले आए, ताकि वो आम लोगों की तरह हो, लेकिन उनका ताल्लुक, उनकी तार, उनका जो मेल मिलाप था, रेकंसिलिएशन जो था, उनका खुदा बाप के साथ ऐसा जुड़ा हुआ था कि कोई इंसान उसको जुदा नहीं कर सकता था। अब क्या होता है, चंद लोग शरारत बांधते हैं, और शरारत करने के लिए एक खूबसूरत औरत का सहारा लेते हैं, एक कस्बी औरत का सहारा लेते हैं, और उस औरत क्या करती है? वो एक कस्बी औरत होती है, वो 16 श्रृंगार करती है, अपनी बॉडी की नुमाइश करती है, और जब स्वामी सुंदर सिंह साहब जो भक्ति कर रहे होते हैं उनके पास चली जाती है, वो बहुत सारी शरारतें करती है, वो बहुत सारे नाच रंग करती है, उसको डगमगाए, उसको मुतसलसिल करे, लेकिन वो खुदा का बंदा था, उसकी आंखें पाक थी, उसका दिल पाक था, उसका रजू खुदा के साथ लगा हुआ था, वो दुनिया से दोस्ती नहीं रखता था, क्योंकि उसका पता था कि दुनिया से दोस्ती रखने वाला खुदा से दुश्मनी रखता है। वो क्या कर रहा था? खुदा की लो में मगन था, वजदाना कैफियत में था, और उस औरत ने सब कुछ वो कर लिया जो वो करना चाहती थी, और वो करके लोगों को गुमराह करती थी। वो जब थकी हारी वहां पर बैठ गई और उसने आवाज से कहा, ऐ स्वामी तू मेरी तरफ नजर क्यों नहीं करता है? तो वो कहता है कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कह रही है मैं इतना सब सवर के आई हूं, सच सवर के आई हूं, ये सारा कुछ तेरा है, मेरा जिस्म तेरा है, मेरी रूह जान बदन तेरा है, और तू मेरा बन जा। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तू कुछ और मांग, मैं तुझे दे सकता हूं। तो वो कहती है कि मुझे तू अपना दिल दे दे। तो वो कहता है ऐ नादान औरत, ऐ अहमक औरत, मेरे पास एक ही दिल था जो मैं यस्सु को दे चुका हूं, अब मेरे पास कोई और दिल नहीं है। अपने दिल को पाक कर लीजिए मेरे अजीज भाई, अपने दिल को ऐसा बना लें जिसमें सिर्फ उसकी तस्वीर नजर आए। जब अपने दिल को खोलें तो उसमें यीशु नजर आए, उसमें यीशु नजर आए। ऐसा ना हो कि इन्ना कुछ दिलों में बसिया हो, यीशु नजर ही ना आए। आज के दौर में हमारे दिलों में इतने लोग बसे होते हैं, इतने लोग बसे होते हैं कि यीशु के बसने के लिए जगह ही नहीं होती, इसलिए हमें बरकतें नहीं मिलती हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसलिए हम परेशानियों में, बीमारियों में, मुसीबतों में, टेंशनों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि जहां पर जिस
जिस्म की सबसे खास जगह जो दिल होता है, उस दिल में हमने किसी और को जगह दी होती है। तो जब कोई और आपके दिल में समा चुका है तो यीशु कहां पर समाएगा? वो तो आना चाहता है, वो तो दिल में आना चाहता है, लेकिन हम उसको दिल से भगा देते हैं, क्योंकि वो तो कहता है कि जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम को इज्जत और जलाल देंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी हजूरी, मेरी ममूरी वहां पर होगी। लेकिन हम उसकी हजूरी ममूरी को एंजॉय करते हैं, लेकिन अपने सांसों में, अपने दिल में नहीं बसाते। इसलिए जब तक उसकी हजूरी होती है, बरकत मिलती है। जैसे हम बाहर जाते हैं, हम दुनिया की बातों में गुम हो जाते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, जिनके अंदर मकर नहीं है, फरेब नहीं है, लालच नहीं है। आज अपने आप को टटोलिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, जज बन जाइए, अपने खुद जज बने, क्योंकि दूसरों को बनाना पसंद नहीं करते। दूसरों को हम जगह ही नहीं देते कोई साढ़े तनकीद करे। तनकीद बनाए, तनकीद अच्छी नहीं है, तनकीद बनाए, इस्लाह जरूरी, और इस्लाह करवाएं अपनी, क्योंकि हम खुद उस्ताद बने होते हैं कि साढ़े तक कौन उंगली चुक सकता है। प्लीज अगर कोई अच्छी बात समझा रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, अच्छा होता है, जरूरी है। अब जो पाक दिल है, पाक दिल समझ आई कि नहीं आई? जिनके दिल के अंदर मकर, फरेब, लालच नहीं होती, जो यीशु बसा होता है दिल में, वो क्या लोग हैं? पाक दिल है। अब जो सेकंड पॉइंट है, जो पाक दिल है, हमने इसको डील कर लिया। अब वो खुदा को देखेंगे। अब वो क्या करेंगे जी? किसको देखेंगे? अब खुदा को देखने से क्या मुराद है? पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसके बाद वाइंड अप कर दूंगा। पाक दिल लोग अब भी पाक रूह की मदद से पाक नविश्तों में खुदा को देखते हैं। खुदा को देखने से मुराद क्या है? कि पाक दिल लोग जो हैं, जिनके अंदर मक्कर, फरेब, लालच, झूठ नहीं है, जो जनाकारी, हरामकारी में मुब्तला नहीं है, जो गंदी मूवीज नहीं देखते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, रातों को बैठ के गंदी मूवी देखते रहते हैं, बुरे बुरे ख्याल करते रहते हैं, सुबह उठ के कहते हैं हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी दी, यीशु यरू दी दीवारा टूट जान, गिर जान। हाले मुकी जड़ी रात को दीवार खड़ी की, वो तो फिर तोड़ो। एनआईटी कब आएगी, कैसे आएगी? ये ड्रामे देखना, ये गंदी मूवी देखना या दूसरे काम करना, प्लीज इनसे छुटकारा हासिल करें। कुछ लोग तो ऐसा होता है, मैं उनके घर में चला दूं, मैंने देख के भी नहीं मुड़ते, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो अपनी जगह तो ना कभी चलागा। प्लीज एहतराम किया करें, रिस्पेक्ट अपनी जगह पे होती है। जब आप खुदा के खादम की रिस्पेक्ट नहीं करते तो दर हकीकत आप खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करे होते। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझे। पाक दिल लोग अब भी पाक रूह की मदद से, पाक दिल लोग आज भी पाक रूह की मदद से, किसकी मदद से? बात को समझना है। खुदा पाक रूह की मदद से, पाक नविश्तों की मदद से क्या होगा? खुदा को देखेंगे। ये जो खुदा का इल्हामी कलाम है बाइबल मुकद्दस, जब हम इसको पढ़ते हैं, तो ये वर्ड ऑफ गॉड है, तहरीर शुदा स्क्रिप्चर है, ये तहरीर शुदा कलाम है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें कलाम मुकद्दस की हम सच्चाई नजर आती है। ये बताता है कि खुदा ऐसा है, खुदा वैसा है, खुदा ये करता है, खुदा वो करता था, खुदा आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। इससे हमें खुदा नजर आता है। ये कोई आम किताब नहीं है, खुदा का इल्हामी कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हामी कलाम है। इससे हम खुदा को देखते हैं, इसके जरिए हम क्या करते हैं? खुदा को देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट, कभी कभी उनको मफूकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल पावर की अथॉरिटी से क्या होता है? वो ज़हूर या रोया नजर आती है, जिसके जरिए वो खुदा को देखते हैं। बहुत सारे लोग सुपर नेचुरल पावर के जरिए, सुपर नेचुरल पावर, मफूकुल फितरत के जरिए वो क्या करते हैं? खुदा के ज़हूर को देख पाते हैं, या वो कहते हैं जी खुदा मुझे नजर आया, खुदा मुझे यीशु मसीह नजर आया मुझे। तो ये हो सकता है, ऐसे कोई दो राय नहीं है, यीशु नजर आ सकते हैं ज़हूर के तौर पर। और रोया, जिसके बारे में सर मोरस ने बहुत डिटेल में बताया है, रोया के जरिए खुदा हम कलाम होता है, खुदा को हम देख सकते हैं। इसके ख्वाब और रोया दोनों के साथ हम खुदा को देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, जब खुदा यीशु मसीह दोबारा आएगा तो उसकी जात में हम खुदा को देखेंगे। जब खुदा यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, जब वो दोबारा आएगा अदालत करने के लिए, जब वो दोबारा आएगा अपने 1000 साल बादशाहत करने के लिए, तो हम क्या होंगे? खुदावंद यीशु मसीह में होकर, खुदावंद यीशु मसीह में नए मखलूक बनकर किसको देखेंगे?
खुदा बाप को देखेंगे। ये पॉइंट्स को आप क्लियर करते रहे। और चौथा पॉइंट ये है कि हम जब आसमान पर जाएंगे, जब जन्नत में जाएंगे, तो तब हम खुदा बाप को रूबरू देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज समझ आई आपको कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि आप में से कितने लोग खुदा को देखना चाहते हैं? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।